Hello students, today we are going to discuss FT test number 5 which was held on 31st December and its code is C. इसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस जो कि था सॉल्यूशन, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, रासायनिक बलगतिकी दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इज molarity of solution which is prepared by mixing 0.2 mole of sugar in 400 milliliter water। तो as we know that molarity is equal to होता है number of moles upon volume of solution in liters। तो this is equal to 0.2 and volume in liters is 0.4, 400 milliliter means 0.4 liter। तो this is equal to 1/2, that is equal to 0.5, therefore our answer is third। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया इज प्रेजेंट 15% बाय मास। तो 15% बाय मास का मतलब क्या होगा कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हेयर weight of solvent will be equal to 100 minus 15, that is equal to 85 gram। Therefore molality is equal to weight of solute 15 divided by molecular weight 60 into weight of solvent in kilogram 85 divided by 1000 into 1000। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 2.94 m। तो आवर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्स ऑफ O2 डिसॉल्व्ड इन 10 moles of water at 293 Kelvin and 1 atmospheric pressure of O2 is nearly the Henry constant of O2 gas in water is 0.3 into 10 to the power 5 atmosphere। तो according to Henry's law we know that pressure of gas is equal to Kh multiplied by mole fraction of the gas, that is moles of gas upon moles of gas plus moles of water। Now here pressure of gas is given 1 and Kh is equal to 0.3 into 10 to the power 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 into 10 to the power 4 into moles of gas upon moles of gas plus 10 moles of water is 10। Now therefore 1 upon 3 into 10 to the power minus 4 is equal to moles of gas upon 10। Because this value is very less, therefore moles of gas is very much less than moles of water। Therefore we can neglect with respect to moles of water, neglect it। Therefore moles of gas is equal to 10 by 3 into 10 to the power minus 4, and on solving this we get 3.33 into 10 to the power minus 4। Therefore our answer is third। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन टर्म्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इज। तो एज वी नो कि टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज होता है और मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाते हैं, बट मास से रिलेटेड जो टर्म्स हैं दे आर नॉट deflected or changed on changing temperature। therefore our answer is molality। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, इफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए जिसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 550 टॉर है और बी जिसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 420 टॉर है, आर मिक्स्ड इन मोलर रेशियो ऑफ 2:3, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वी नो दैट total vapor pressure of solution is equal to XA into P naught A plus XB into P naught B, that is mole fraction of B into vapor pressure of pure B, and here mole fraction of A is 2/5 into the vapor pressure in pure state 540 plus mole fraction of B is 3/5 into vapor pressure in pure state 420, and on solving this we get 468 torr. Therefore our answer is fourth. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ सॉल्यूशन गिव्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन, तो इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल अगर देखें तो मेथनॉल और वाटर विच इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा है इथेनॉल एंड वाटर विच इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, तीसरा है बेंजीन एंड टोल्यूइन विच फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, एंड fourth is water and HNO3 which is the example of negative deviation. तो our answer is fourth. next question पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि among the following which is not a colligative property, तो colligative properties वो होती हैं which depends on the number of moles or number of particles of solute, and they are lowering, relative lowering of vapor pressure or lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure, while boiling point, freezing point and vapor pressure are not colligative properties. तो our answer is vapor pressure of pure solvent. next question पे चलते हैं बच्चों। next question है बेटा, 2 mole of non volatile solute and non electrolyte is added in 8 moles of water, then relative lowering of vapor pressure. तो as we know that relative lowering of vapor pressure delta P upon P naught is equal to होता है mole fraction of solute, and mole fraction of solute is equal to moles of solute divided by total moles. That is, moles of solute is given 2 and total mole is 2 plus 8, that is 10. So our answer is 0.2, that is second. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, elevation of boiling point in aqueous solution of 0.1 molar monobasic acid which undergoes 25% ionization. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसोसिएशन। Kb की वैल्यू ये दी हुई है, एंड वी नो दैट डेल्टा Tb इज इक्वल टू I multiplied by Kb multiplied by molality, and here I is equal to 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हो गई 0.25, और मोनोबेसिक एसिड है तो इसके लिए n की वैल्यू 2 minus 1, that is equal to 1.25. Therefore delta Tb is equal to 1.25 into 0.52 Kb की वैल्यू into molality is given 0.1, and on solving this we get 0.065 Kelvin. Therefore our answer is second. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट minus
delta TF. तो now here delta TF की वैल्यू जितनी कम होगी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट. तो अब यहां पर अगर हम बात करें ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल आर NaCl, ऑल आर NaCl, सबके लिए I इज इक्वल टू n होगा, that is equal to 2 number of particles obtained after dissociation, because here percentage dissociation is not given, and delta TF is equal to I into KF into molality. तो अब वो सॉल्यूशन जिसके लिए मोलैलिटी सबसे कम होगी उसका डेल्टा TF सबसे कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. तो अब यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो चौथे ऑप्शन में NaCl की मोलैलिटी सबसे कम है, देयरफॉर आवर आंसर इज फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ 0.04 m solution of Na2SO4 which is 100% ionized is isotonic with solution of glucose, then molarity of aqueous solution of glucose is. तो अब यहाँ पर आइसोटोनिक का मतलब हुआ कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. Na2SO4 100% आयोनाइजेशन है, तो Na2SO4 के लिए I की वैल्यू होगी 3 और ग्लूकोज के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट I इज इक्वल टू 1 और दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, देयरफॉर OP ऑफ Na2SO4 will be equal to OP of glucose. That is I3 into concentration 0.04 into RT, and इसके लिए हो गया 1 into इसका concentration हमें निकालना है into RT. RT cancel, therefore our answer is 0.12 m. That is third. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solute dimerizes 80%, therefore I will be. Now in case of association we know that I is equal to होता है 1 plus alpha into 1 upon n minus 1, where n is the number of molecules associated और dimerization का मतलब है number of moles associated is 2. Therefore I is equal to 1 plus अल्फा की वैल्यू हो गई 80 upon 100, that is 0.8 into 1 by 2 minus 1, that is equal to 1 minus 0.4, that is equal to 0.6. तो our answer is second. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, elements present in face center of a cube cell will shared between how many unit cells. तो as we know कि फेस सेंटर पे जो एटम सिचुएटेड होते हैं उनका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, दैट इज दे आर शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स. आवर आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब. तो एज वी नो के इन सिंपल क्यूब A इज इक्वल टू होता है 2RK. तो आवर आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि फॉर NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल AB, if radius of cation is 500 picometer and radius of anion is 1000 picometer, then edge length of unit cell. अब FCC स्ट्रक्चर होगा NaCl टाइप क्रिस्टल का है,
तो FCC स्ट्रक्चर होता है, और FCC स्ट्रक्चर में R प्लस और R माइनस का सम होता है A/2। तो A इज इक्वल टू हो गया, therefore A is equal to 2 into R plus R minus, that is equal to 2 into 500 plus 1000, that is equal to 3000 picometer. Therefore our answer is first. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेंसिटी ऑफ FCC क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट X जिसका एटॉमिक मास है 60 AMU, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 200 पिकोमीटर, विल बी नियरली। तो एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है Z इंटू M अपॉन A to the power 3 into Na। अब फेस सेंटर्ड क्यूब है तो Z की वैल्यू हो गई 4, और इसका देखो एटॉमिक मास दिया हुआ है 60 AMU, डिवाइडेड बाई एज लेंथ को हम लोग रखेंगे सेंटीमीटर में, दैट इज 200 इंटू 10 to the power minus 10 to the power 3 into एवोगैड्रो नंबर 6 into 10 to the power 23, and on solving this we will get 50. Therefore our answer is 50 gram per cc. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ फेस सेंटर्ड क्यूब अरेंजमेंट ऑफ A and B atoms, A atoms are at corner of the unit cell and B atoms are at face center, और उसके बाद आपसे बोला गया है one of the B atom is missing from one face of unit cell, तो simplest formula of the compound is, तो as we know that A atoms is at corner, तो A की वैल्यू हो गई 1/8 into 8, that is equal to 1, और B यहाँ पर फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर होते हैं 6 और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, बट हेयर इट इज गिवन दैट one of the B atom is missing from one face center, that means only 5 face centers are occupied, तो यहाँ पर नंबर ऑफ B atoms हो गया 1/2 into 5, that is equal to 2.5. Therefore, A ratio B is equal to 1:2.5, that is 2:5. Therefore, simplest formula of compound is A2B5. तो our answer is third. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि NaCl is doped with 0.01% SrCl2, then the number of cationic voids in 1 mole NaCl। तो अब डोपिंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो Sr+2 आयन जो है ये Na+ आयन को रिप्लेस करेगा, और टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द यूनिट सेल 1 मोल या 1 Sr+2 आयन 2 Na+ आयन को रिप्लेस करता है, जिसमें एक Na+ को ऑक्यूपाई कर लेगा और एक पोजीशन वेकेंट रहेगी। तो यहाँ पर 1 Sr+2 replaces 2 Na+ आयन, और 1 मोल NaCl में Sr+2 10 to the power -4 मोल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसका मतलब therefore
10 to the power minus 4 mole vacancies are generated. इतनी वैकेंसीज होंगी, therefore number of vacancies is equal to mole multiplied by Na, that is 10 to the power minus 4 into 6.02 into 10 to the power 23. So our answer is 6.02 into 10 to the power 19, that is first. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. तो our next question is स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. पहला बोल रहे हैं डेंसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट. शॉटकी डिफेक्ट. तो अब शॉटकी डिफेक्ट क्या है? शॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशंस, जिसकी वजह से मास ऑफ यूनिट सेल डिक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, और यहां पर बोला गया है इंक्रीज. तो ये स्टेटमेंट गलत है. उसके बाद बोल रहे हैं डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट. फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि एटम्स अपनी पोजीशंस छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. देयरफॉर आवर आंसर इज फोर्थ. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय. पहला ऑप्शन दे रहे हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, दूसरा इंक्रीज इन प्रेशर, तीसरा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और चौथा इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो एज वी नो कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT. और टेम्परेचर अगर हम लोग राइज करते हैं तो K की वैल्यू राइज होती है. Therefore our answer is increase in temperature. प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, कंसंट्रेशन का रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एज वी नो that in zero order reaction rate do not depend on the concentration of reactants. Therefore यहाँ पर rate law लिखा जाता है R is equal to K. That is यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट, और रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड. देयरफॉर आवर आंसर इज सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इन एसिडिक मीडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इन एसिडिक मीडियम क्या है? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय A नॉट एंड की रेट कांस्टेंट. तो एज वी नो दैट A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू होता है KT के, where A naught is initial concentration and AT is concentration left after time T, or half life period is the time at which half of the initial concentration is consumed. तो at T half AT की वैल्यू होती है A naught by 2. तो on putting this value A naught by 2 is equal to K into T half. Therefore, T half is equal to A naught upon 2K. तो our answer is fourth. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि यूनिट ऑफ आर्हेनियस फैक्टर A फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो एज वी नो
दैट यूनिट ऑफ आर्हेनियस कांस्टेंट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, और ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट होता है पर सेकेंड। तो आवर आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि इफ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ rate constant at higher temperature to rate constant at lower temperature when the difference of temperature is of 10 degree Celsius। और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 होने का मतलब ये हुआ कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, और रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो यहां पर अगर हम लोग रिलेशन देखें तो रिलेशन लिखा जाता है आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल इंटू 2 टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10। अब यहां पे डेल्टा टी की वैल्यू है 77 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 50। तो डेल्टा टी अपॉन 10 इज इक्वल टू हो गया 5। देयरफॉर आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल इंटू 2 to the power 5 that is equal to 32 times of R initial, 32 times of R initial, therefore our answer is 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है द फॉलोइंग ग्राफ रिलेट्स द इनिशियल कंसंट्रेशन विद हाफ लाइफ पीरियड। ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है। तो एज वी नो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। अभी हम लोगों ने रिलेशन लिखा था। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, और थर्ड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन होता है। यहां पर देखो टी हाफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एनर्जी ग्राफ। एनर्जी ग्राफ दिया हुआ है, ए दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, दैट इज दिस वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी बी माइनस ए। देयरफॉर आवर आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पॉसिबल ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो एज वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ होता है R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन, दैट इज Y इज इक्वल टू M इंटू X। तो अब यहां पर रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन passing through region, therefore our answer is 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A in the reaction A gives to B is 1m, then the concentration of A after t seconds। K की वैल्यू दी हुई है, और K की वैल्यू दी हुई है
0.02 m पर सेकेंड। ये यूनिट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर। देयरफॉर यहां पर ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। देयरफॉर ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, that is equal to 1 minus 0.02 into टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, that is equal to 0.8 m. Therefore our answer is first. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ time required for 75% completion is this 69.3 सेकेंड। अब फर्स्ट ऑर्डर में 75% कंप्लीशन का मतलब होता है 75% completion means 2t half, and here 2t half is equal to है 69.3, therefore t half is equal to 69.3 divided by 2, therefore k is equal to 0.693 divided by t half, और t half की वैल्यू है 69.3 by 2, तो इंटू 2 पर हो गया। दिस इज इक्वल टू 0.02 पर सेकेंड। देयरफॉर आवर आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम इज। तो एज वी नो दैट मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है ट्राइक्लिनिक, therefore our answer is 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 BCC यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में एज वी नो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है 2, तो आवर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC यूनिट सेल। तो पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें FCC यूनिट सेल में, तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC यूनिट सेल होती है √2 π/6, और यहां पर परसेंटेज के टर्म में आंसर है तो इंटू 100, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आता है थर्ड, दैट इज 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एज वी नो के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल पे अगर हम लोग बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर होता है 2, देयरफॉर आवर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन वाटर विल बी। तो एज वी नो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH into mole fraction of the gas. Therefore, mole fraction of gas is equal to pressure of gas
अपॉन KH। अब यहां पे तुमसे पूछा गया है मोस्ट सॉल्युबल। मोस्ट सॉल्युबल का मतलब हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस हायर होना चाहिए। प्रेशर को कांस्टेंट रखा जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जिस गैस के लिए KH की वैल्यू सबसे कम होगी उसका मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो लेसर द वैल्यू ऑफ KH, हायर इज द सॉल्युबिलिटी। KH की वैल्यू अगर लेस होती है तो अब यहां पे देखो थर्ड में KH की वैल्यू सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ XA एंड XB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स A एंड B, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। तो एज वी नो दैट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज होता है वेपर प्रेशर partial of the component upon total vapor pressure. Therefore, partial vapor pressure of A is equal to XA into P naught A, और टोटल वेपर प्रेशर हो गया XA इंटू P naught A प्लस XB इंटू P naught B। Therefore, our answer is थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो अब यहां पर देखो चार स्टेटमेंट दिए हैं, चारों को वन बाय वन पहले बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। दूसरा दिया है, सॉल्यूशन ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर इज नोन एज हाइपोटोनिक। तीसरा दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर इज नोन एज हाइपरटोनिक। चौथा दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब इन चारों स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर is used to find determined of molar mass of macromolecules at room temperature। क्योंकि अदर प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो अदर प्रॉपर्टीज की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आती है वो बहुत कम होती है, while osmotic pressure is higher। तो osmotic pressure is used to determine the molar mass, first option। लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक बोला जाता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बोला जाता है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इटसेल्फ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी। तो एज वी नो मॉलिक्युलरिटी इज नेवर ए फ्रैक्शनल क्वांटिटी, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती है। तो अब यहां पर क्लियर है कि आवर आंसर इज थर्ड। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी इज नेवर ए फ्रैक्शनल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर है कि फॉर ए रिएक्शन A plus 2B gives C, order of reaction is A is in axis will be। अब A को अगर एक्सिस में लिया जा रहा है तो रेट A के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, और यहां पर हम लोग रेट लॉ लिखेंगे, R इज इक्वल टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू दी पावर 2। और इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन।
Cr2O7 minus 2 plus 5H plus 3HNO2 gives 2Cr plus 3 plus 3NO3 minus plus 4H2O. The rate of decomposition of HNO2 is 2 into 10 to the power minus 2 m per second. तो rate of formation of NO3 will be. तो अब HNO2 और NO3 माइनस के रेट में अगर हम रिलेशन लिखें तो लिखा जाएगा -1/3 dCHNO2 upon dt is equal to 1/3 into dCNO3 minus upon dt. ये माइनस साइन यहां पर इसलिए लगा है कि रेट इज एक्सप्रेस्ड विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. रेट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. और इस रिलेशन से हमें यह पता चलता है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HNO2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO3 के बराबर होगा या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 के बराबर होगा. देयरफॉर आवर आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है the rate of a gaseous reaction is given by the expression R is equal to K into active mass of A into active mass of B to the power 2 if the concentration of A and B increases by a factor 2. दोनों के concentration को डबल कर रहे हैं तो रेट पर क्या इफेक्ट होगा. तो चलो यहां पर देखो रेट लॉ अगर हम लिखें तो पहले मैं लिख रहा हूं R1 is equal to K into active mass of A into active mass of B to the power 2. This is given rate law. अब यहां पे तुमसे बोला गया है कंसंट्रेशन को डबल कर दो, मतलब A और B दोनों के एक्टिव मास को डबल किया. एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन. तो इसको मैं लिख सकता हूं कि R2 इज इक्वल टू K इंटू 2A इंटू 2B to the power 2. Therefore, R1 upon R2 is equal to 1 upon 16. Therefore, R2 is equal to 16 times of R1. Therefore, our answer is 4th. Next question पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो कलर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज ड्यू टू. तो एज वी नो दैट येलो कलर ऑफ NaCl इज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज. तो पहला बोला गया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स. नो. दूसरा बोला गया है सिर्फ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. तीसरा बोला जा रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रिस्टल अबव बेस्ट एक्सप्लेन्स. तो अब ये देखो एक डायग्राम हमें दिया है और इसमें अगर हम देखें तो यहां पर कैटायन मिसिंग है, यहां पर एनायन मिसिंग है, यहां पर एनायन मिसिंग है, यहां पर कैटायन मिसिंग है. इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग. तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉटकी डिफेक्ट. देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का अगर आपको एग्जांपल याद है तो आंसर इज ड्राई आइस, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड इज कोवेलेंट, दिस इज आयनिक और वो मेटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंसीडरिंग 100% डिसोसिएशन. तो अब देखो यहां पर मोलैलिटी सारे सॉल्यूशंस की सेम है. डेल्टा TB is equal to I into KB into molality.
अब मोलैलिटी सेम है, के भी कांस्टेंट है, तो जिसके लिए आई सबसे ज़्यादा होगा डेल्टा टी भी सबसे ज़्यादा होगा, और डेल्टा टी भी सबसे ज़्यादा होने का मतलब एलिवेशन सबसे ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। और 100% डिसोसिएशन की बात हो रही है। 100% डिसोसिएशन में I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। NaCl के लिए n की वैल्यू 2, CaCl2 के लिए n की वैल्यू 3, AlCl3 के लिए n की वैल्यू 4 और AgNO3 के लिए n की वैल्यू 2। तो सबसे ज्यादा I की वैल्यू AlCl3, देयरफॉर आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कब बनता है? जब पॉजिटिव डेविएशन होता है। और पॉजिटिव डेविएशन के केस में प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो डेल्टा वी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी निगेटिव, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी निगेटिव होता है, और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमारा आंसर इज फर्स्ट, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फेरीमैग्नेटिक क्रिस्टल। तो अब फेरीमैग्नेटिक क्रिस्टल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेटिक मूवमेंट का अलाइनमेंट अनइक्वल होता है। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें अनइक्वल अलाइनमेंट अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का देखा जाए तो आवर आंसर इज फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट ऑन डोपिंग विद सिलिकॉन विद रिजल्ट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं? जब 15th ग्रुप एलिमेंट्स की डोपिंग होती है, और 15th ग्रुप एलिमेंट यहां पर अगर देखा जाए तो है आर्सेनिक। आवर आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1, रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दूसरा स्टेटमेंट है रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो एज वी नो दैट K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। और इस इक्वेशन से अगर हम लोग बात करते हैं तो टेम्परेचर रेज करने पर K की वैल्यू इंक्रीज होती है, और K इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज होगा, वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब पहले में बोला गया है कि टेम्परेचर रेज करने पर रेट इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है, और दूसरे में बोला जा रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेट डिक्रीज होगा, ये गलत है। तो अब अगर ऑप्शंस पे जाएं तो पहला ऑप्शन बोल रहे हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दिस इज रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था हमारा FT 5 का डिस्कशन। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आया होगा। अगले टेस्ट की तैयारी बढ़िया से करो। ओके, थैंक यू।